Good morning, all of you. In the previous module, we have discussed about the reserve constituency, and in early classes, we also discussed about the Lok Sabha constituency. As I told about that, the Lok Sabha constituency is divided into the 545 43 seats, जिसको मैंने पहले बताया था कि the whole country is divided into the 543 parliamentary constituency, and out of that 412 are general and 84 for scheduled caste reservation and 47 are reserved for scheduled tribes. देखिए, this is the list that how many parliamentary constituency has been risen in a different states. Like you can take example of Uttar Pradesh. आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश से जो हैं parliamentary constituency के there are 80 candidates has been selected from the Uttar Pradesh. Out of this 543, 80 candidates or 80 MP has been selected from Uttar Pradesh only. ठीक है, ऐसे देखिए आप different states से as per the population of the states the specific parliamentary constituency seat has been made for reservation. Okay, and now next topic we'll discuss about that voter list. As I already told about that elections में हम लोग ने जैसे पहले बताया हुआ था कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसके बाद जो इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है तो उससे पहले वी स्टार्ट वोटर लिस्ट सिलेक्शन. तो वोटर लिस्ट होती क्या एक्चुअली? It's just a list in which the different types of the people's name are available and their constituency number is also available in that particular. देखिए, एक जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, इन अ डेमोक्रेटिक लाइक इंडिया, a democratic elections, the list of those who are eligible to vote is prepared. देखिए, much before the election and given to the everyone. जो भी लोग अपने आप को नॉमिनेट करने जा रहे हैं उन लोगों को नॉमिनेशन से पहले एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, वो होती है वोटर लिस्ट. तो वोटर लिस्ट हैज स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिफोर 2 to 3 years ऑफ इलेक्शंस. जैसे मान लो अगर मान लो 2020 में इलेक्शन हो रहे हैं तो लगभग 2017 में या 2000 एक दो साल पहले वोटर लिस्ट प्रिपरेशन शुरू हो जाता है. ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन अ वोटर लिस्ट? होता क्या है कि हु आर एलिजिबल टू वोट. अब एज वी नो दैट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यूनिवर्सल सफरेजेस, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग a person who has completed 18 years old are considered to cast their vote only, and there is no discrimination as per the caste, social status, gender or any other things for that voting criteria. ठीक है, this list is officially called the electoral list. देखिए, there is one more name of the voter list, वो है आपका electoral list. यानी वोटर लिस्ट को हम लोग इलेक्टोरल भी बोलते हैं, इलेक्टोरल रोल भी बोलते हैं. ठीक है, एंड इट इज कॉमनली नोन एज अ वोटर लिस्ट. ठीक है, अब देखिए वोटर लिस्ट में एग्जैक्टली होता क्या है. इन आवर कंट्री आर सिटीजन एज्ड 18, जो हमारी कंट्री में 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शंस. जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया कि 18 ईयर्स तो अबव जितने भी लोग हैं दे कैन कास्ट देयर वोट इन द वोटर इन द इलेक्शंस ओनली as they are considered to be eligible for casting their vote. Every citizen have right to vote regardlessly his or her caste. I told about that there is no discriminations during the voting has taken places as per the caste, religion or gender. यानी किसी भी particular person का कोई भी caste हो, he belongs to any religion or he belongs to any gender, he or she is having the right to cast their vote. ठीक है, some criminals person with the unsound minded can denied right to votes but only in a rare situation. बहुत limited people जैसे unsound minded, किसी को mentally retarded अगर treat किया गया, या few people are very dangerous or they are very आप कह सकते हो डेंजरस क्रिमिनल हैं, उनको डिनाई किया जा सकता है बट नॉट इन ऑल सिचुएशन, इन अ वेरी लिमिटेड सिचुएशन इट हैपेंस. ठीक है, तो वोटर लिस्ट में एग्जैक्टली होता क्या है देखिए. Generally, as I already told you, before the elections, around 2-3 years before the election, the voting list updation work started. ठीक है, तो उसमें क्या है, न्यू पर्सन अटेंड द वोटिंग एज. ऐसे जैसे मान लीजिए अभी कोई पर्टिकुलर पर्सन सपोज दैट 14 ईयर्स का है या 16 ईयर्स का है तो वो 2 साल के बाद 18 ईयर्स का हो जाएगा. तो उसके हिसाब से क्या होता है, न्यू पर्सन अटेंडिंग वोटिंग एज नेम्स आर एडेड टू द वोटर लिस्ट. एक ऐसे पर्सन जो 18 साल के रिसेंटली हुए, देयर नेम हैज आल्सो एनरोल्ड इन दैट वोटिंग लिस्ट. नेम ऑफ दोज, और ऐसे लोग हु मूव आउट फ्रॉम द प्लेसेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड.
देखिए दिस इज कॉल्ड द अपडेशन इन अ वोटिंग लिस्ट। एक्चुअली वोटिंग लिस्ट में होता क्या है, जैसे आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब अपडेशन ऑफ द वोटर लिस्ट टेकन प्लेस होता है, देन एट दैट टाइम they will just make a list of the people who has completed 18 years। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाती है जिनको एज जो है वो 18 years कंप्लीट हो गई है, एंड देयर नेम हैज बीन मेंशन्ड अलोंग देयर स्पाउसेस और देयर फादर्स नेम। उनके साथ उनके नेम वोटर लिस्ट में मेंशन्ड हो जाते हैं। इसके अलावा एक और लिस्ट बनती है, दैट लिस्ट इज अ पर्सन हु हैव बीन डेड और हैज बीन माइग्रेटेड फ्रॉम देयर। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी शहर की किसी भी एक लोकेलिटी में रहते हो और आपने उस लोकेलिटी को छोड़ दिया और उसके अलावा आप किसी और शहर में चले गए, तो आपका प्रीवियस बोर्ड है वो वहां से डिलीट कर दिया जाएगा, और जहां पर आप न्यू लोकेलिटीज में जाएंगे यू हैव टू एनरोल योर सेल्फ एंड योर नेम विल बी एडेड इनटू द वोटिंग लिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूएंसी द वोटर लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड। जैसे मान लो हमारी पीलीभीत की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो उसकी एक वोटर लिस्ट प्रिपेयर होगी, ऐसे बरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां की वोटर लिस्ट प्रिपेयर होगी। ठीक है, अपडेशन में क्या होता है, ऐसे लोग जिन्होंने रिसेंटली 18 ईयर्स कंप्लीट किया है या जो माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हैं उनके नेम्स को मेंशन कर दिया जाता है, और जिनकी डेथ हो गई है या जो माइग्रेट होकर किसी और प्लेसेस पे पहुंच गए, दिस रिवीजन वर्क जो होता है वो किया जाता है, और वोटर लिस्ट को एवरी 5 years में अपडेट किया जाता है। देखिए, अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस लिस्ट टेक प्लेसेस एवरी 5 years। यानी हर 5 year में जब इलेक्शन होता है तो वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, अभी लास्ट टू फ्यू ईयर्स से वोटर लिस्ट के साथ साथ द इलेक्शन कमीशन इज प्रोवाइडिंग ए स्पेसिफिक कार्ड। इट इज नोन एज इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसको ईपीआईसी भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर इसी ईपीआईसी की ये जो पिक्चर्स बना रखी है आप देख सकते हो, ये जो है आपकी ईपीआईसी एक आपका इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड का पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, हैज बीन इंट्रोड्यूस। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। जहां भी आपका वोटर लिस्ट बन जाता है तो गवर्नमेंट क्या करता है, आपका फोटो, आपका नेम, योर फादर्स नेम, जेंडर, और आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, आपका एरिया, आपका वार्ड नंबर, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर कार्ड, एंड दिस बिकम द आईडी प्रूफ टू। ये आपका एक वोटर आईडी प्रूफ भी हो जाता है कि आप इस स्पेसिफिक एरिया से एनरोल्ड हैं। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है ईपीआईसी यानी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज ट्राई टू गिव दिस कार्ड एवरी पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सारे बच्चों को। तो व्हाट इज वोटर लिस्ट, एक लिस्ट होती है जिसमें आपके नेम मेंशन्ड होते हैं, एंड हर 5 years में वोटर लिस्ट का अपडेशन होता है। इलेक्शन कंडक्शन से पहले वोटर लिस्ट का अपडेशन मैंडेटरी है। फर्स्ट दे जस्ट सिंपली अपडेट द वोटर लिस्ट, और अपडेशन में व्हाट हैज हैपेंड इन द अपडेशन, आपका नेम जो है उनको ऐड किया जाता है, एडिशन ऑफ द नेम हु हैज कंप्लीटेड 18 years और केम फ्रॉम द माइग्रेशन अदर एरियाज, और जो यहाँ से चले गए हैं द फ्यू पीपल्स दोज हु हैव लेफ्ट और माइग्रेटेड फ्रॉम द रीजंस एंड जस्ट ज्वाइन, और दोज हु हैव गॉट दैट, इन सबके नेम्स को डिलीट किया जाता है, और देन वन आईडी कार्ड इज आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।